Hello, good morning friends. Myself Jatin Dave from Asapura School and welcome all of you. Standard 9, subject Science and Technology and chapter number 15, Improvement of the Food Resources. Dear students, chapter number 15, Improvement of the Food Resources का ये continues 6th explaining video है. प्रीवियस वीडियो के माध्यम से हमने टॉपिक शुरू किया है 15.1.2 और इसमें सबसे पहला हमने जो आर्टिकल्स दिया है वो है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट. न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट को लेकर हमने प्रीवियस वीडियो में आपके साथ डिस्कस की कि न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट आर सप्लाइड बाय द एयर, वाटर एंड सॉइल. There are 16 nutrients are essential for the plants, and these nutrients are as the carbon, oxygen, hydrogen, nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, magnesium, sulfur, iron, manganese, boron, zinc, copper, molybdenum and chlorine. We know that very well the deficiency of these nutrients affect the physiological process of the plants like the reproduction, growth and susceptibility of the disease. So such a deficiency will decrease the yield. So soil can be enriched by the manure and fertilizer for the providing these nutrients. तो हमने देखा कि सॉइल को इनरिच बनाने के लिए खास करके न्यूट्रिएंट्स और ऑर्गेनिक मैटर्स के मामले में मैन्योर्स का यूज़ होना चाहिए, फर्टिलाइज़र का यूज़ होना चाहिए. तो जिससे चलते हुए हमने बाद में मैन्योर के बारे में बात की. मैन्योर इज द प्रिपेयर्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द प्लांट वेस्ट एंड एनिमल एक्सक्रेटा and it consists of the large quantities of the organic matter and the small quantities of the nutrients. Advantages of the manure is enrich soil with the nutrients and organic matter, increases soil fertility, improves the soil structure due to the bulk of the organic matter present, increase the water holding capacity in the sandy soil, helps in the drainage and in avoiding water lodging in the clay soil. Because the biological waste material is used, it is good for the environment, and the recycling of farm waste take place due to use of the biological waste materials. जिसके बाद हमने क्लासिफिकेशन ऑफ द मैन्योर की बात की. सबसे पहला था डिकम्पोज. डिकम्पोज कंटेन द फार्म वेस्ट मटेरियल लाइक द लाइवस्टॉक एक्सक्रेटा, काउ डंग एक्सेट्रा, वेजिटेबल वेस्ट, एनिमल रिफ्यूज, डोमेस्टिक वेस्ट, सेवेज वेस्ट, स्ट्रॉ, eradicated weeds, etc. And this waste is decomposed in pits by the process of called the compositing, and the composting rich in organic matter and nutrients. Second is the vermicompost. Composting done with the help of the earthworm to hasten the process of the decomposition of plant and animal refuse is called the vermicompost. And the third is green manure. Green manure is prepared by mulching and then the plowing into the soil, and some green plants such as sunham and goa prayer to the sowing of the crop seed, and these green plants decompose into green manure which helps in enriching the soil in the nitrogen and phosphorus. अब आगे इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्टिलाइजर एंड देन आफ्टर ऑर्गेनिक फार्म्स. Commercially produced plant nutrients, they supply nitrogen, phosphorus and potassium is called the fertilizers. खाद क्या है, रासायनिक खाद क्या है, केमिकल फर्टिलाइजर क्या है? तो एक्चुअली कॉमर्शियल प्रोड्यूस प्लांट न्यूट्रिएंट्स हैं. ये कॉमर्शियल बेस पर व्यापारिक धोरण पर पैदा किए गए प्लांट न्यूट्रिएंट्स हैं, and they supply nitrogen, phosphorus and potassium for the growth of plant. Advantages क्या है इसके? Good vegetative growth of leaves, branches and flowers. फर्टिलाइजर का यूज करने से
वेजिटेटिव ग्रोथ, खास करके पत्तों के बारे में, शाखों के बारे में और फूलों के बारे में अगर जो बात करें तो गुड वेजिटेटिव ग्रोथ देखने को मिलता है पत्तों में, शाखों में और फूलों में। गिविंग राइज टू द हेल्दी प्लांट, इसकी वजह से प्लांट है वो हेल्दी बनता है, आरोग्यप्रद बनता है। एंड हाई यील्ड ऑफ द हाई कॉस्ट फार्मिंग, हाई कॉस्ट फार्मिंग के साथ हाई यील्ड मतलब कि अधिक उत्पादन, अधिक खर्च के साथ अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। यह है एडवांटेजेस। फिर से एक बार रिपीट करेंगे एडवांटेजेस को, प्लीज नोट डाउन। फर्स्ट, गुड वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ लीव्स, ब्रांचेस एंड फ्लावर, गिविंग राइज टू हेल्दी प्लांट्स। एंड थर्ड, हायर यील्ड ऑफ द हाई कॉस्ट फार्मिंग। अब चलते हैं डिसएडवांटेजेस की तरफ। एप्लीकेशन ऑफ द फर्टिलाइजर शुड बी डन केयरफुली इन टर्म्स ऑफ द प्रॉपर डोज। सबसे पहली बात यह कि जब आप फर्टिलाइजर का यूज करते हैं तब सबसे पहले आपको ये केयरफुली रहना है कि टर्म्स ऑफ द प्रॉपर डोज ही आपको देना है, मतलब कि जितनी मात्रा में इसे देने की एडवाइस दी गई है या फिर देने के लिए आपको डायरेक्शन दी गई है उसी मात्रा में उसे प्रोवाइड करना चाहिए। टाइम एंड ऑब्जर्विंग प्री एंड द पोस्ट एप्लीकेशन प्रिकॉशन फॉर देयर कंप्लीट यूटिलाइजेशन। इसका पूरा उपयोग करने के लिए आपको समय के साथ साथ जो ऑब्जर्विंग प्री एंड पोस्ट एप्लीकेशन प्रिकॉशंस बताई गई है, जो सावचेती बरतने के बारे में फर्टिलाइजर का यूज करने से पहले और कर लेने के बाद जो भी बताई गई है गाइडलाइन, उस गाइडलाइन को कंप्लीटली आपको फॉलो करना चाहिए इसका उपयोग करते हुए। अदरवाइज इट कॉजेस प्रॉब्लम। अगर जो ऐसा नहीं होता है तो ये अनेक प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं, समस्याएं पैदा कर सकते हैं। दूसरा, एक्सेस फर्टिलाइजर लीड्स टू वाटर पॉल्यूशन। ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर का उपयोग करने से पानी प्रदूषित होता है, पानी प्रदूषण की समस्या सामने आती है। तीसरा, सॉइल फर्टिलिटी इज डिस्ट्रॉयड बाय कंटिन्यूस यूज ऑफ द फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर का कंटिन्यू यूज करने से धीरे धीरे सॉइल फर्टिलिटी है ये कम होती जाती है। और चौथी बात, fertilizer used for the short term and manure used for the long term maintains the soil fertility। तो soil fertility को अगर जो मेंटेन करना है तो फर्टिलाइजर को कम मात्रा में कम समय के लिए इस्तेमाल करना चाहिए और मैन्योर को ज़्यादा से ज़्यादा समय के लिए इस्तेमाल करने से soil fertility मेंटेन कर सकते हैं एंड टू प्रोड्यूस ऑप्टिमम yield in the crops production। और इस एटीट्यूड के साथ, इस व्यू के साथ हम ज़्यादा मात्रा में, अधिक मात्रा में उत्पादन ले सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे डिसएडवांटेजेस ऑफ द फर्टिलाइजर की, फिर से एक बार नोट डाउन कर लें। डिसएडवांटेजेस ऑफ द फर्टिलाइजर, एप्लीकेशन ऑफ द फर्टिलाइजर शुड बी डन केयरफुली इन टर्म्स ऑफ द प्रॉपर डोज, टाइम एंड ऑब्जर्विंग प्री एंड पोस्ट एप्लीकेशन प्रिकॉशंस फॉर देयर कंप्लीट यूटिलाइजेशन, otherwise it causes problem। Second, excess fertilizer leads to water pollution। Third, soil fertility is destroyed by continuous use of the fertilizer। And fourth, the fertilizer used for the short term and fertility to produce optimum yield in a crop production। तो ये था फर्टिलाइजर से क्या है और फर्टिलाइजर का यूज करते हुए क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस सामने आते हैं। इस वीडियो में आखिर में हम बात करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, जो कि आजकल का एक बहुत ही पॉपुलर ट्रेंड है ऑर्गेनिक फार्मिंग। इट इज द फार्मिंग सिस्टम इन विच द फॉलोइंग प्रैक्टिस आर फॉलोड इज कॉल्ड द ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या क्या देखने को मिलता है इसकी बात करेंगे। मिनिमल और नो यूज ऑफ द केमिकल एज फर्टिलाइजर्स, हेर्बिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर फर्टिलाइजर का मिनिमम यूज होता है या फिर नो यूज ऑफ द फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल ही नहीं होता। न सिर्फ फर्टिलाइजर, हार्बिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स का भी यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होता है, मतलब कि किसी भी तरीके के केमिकल्स जो हैं वो इसमें इस्तेमाल नहीं किए जाते, फिर वो फर्टिलाइजर फॉर्म में हो, पेस्टिसाइड्स फॉर्म में हो या फिर हार्बिसाइड्स फॉर्म में हो। दूसरा,
मैक्सिमम इनपुट ऑफ द ऑर्गेनिक मैन्यूर, ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक मैन्यूर्स का उपयोग होता है। रिसाइकल फार्म वेस्ट, जो फार्म वेस्ट है जैसे कि स्ट्रे घास फूस है या लाइव स्टॉक एक्सक्रेटा है एनिमल्स के, ऐसी जो प्रोडक्ट है फार्म वेस्टेस है उसे रिसाइकल किया जाता है। तीसरा, यूज ऑफ द बायो एजेंट सच एज द कल्चर ऑफ द ब्लू ग्रीन algae इन अ प्रिपरेशन ऑफ द बायो फर्टिलाइजर्स। अगर फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ती है तो बायो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल होता है, और ये बायो फर्टिलाइजर बनाने के लिए बायो एजेंट जैसे कि कल्चर ऑफ द ब्लू ग्रीन algae ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक इसी तरह से यूज ऑफ द बायो पेस्टिसाइड्स, अगर पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना है तो इसके लिए भी बायो पेस्टिसाइड अवेलेबल बनता है, जिसमें नीम लीव्स और टर्मेरिक स्पेसिफिकली इन अ ग्रेन स्टोरेज, खास करके ग्रेन स्टोरेज के लिए अनाज को स्टोर करने के लिए नीम के पत्ते और टर्मेरिक मतलब कि हल्दी, इसका स्पेशल इस्तेमाल होता है। हेल्दी क्रॉपिंग सिस्टम यहाँ पर अप्लाई की जाती है, जैसे कि मिक्स क्रॉपिंग है, इंटर क्रॉपिंग है, क्रॉप रोटेशन है, मतलब कि पाक को लगातार रोटेट करते रहना है अलग अलग क्रॉप्स को, या इंटर क्रॉपिंग करना है या मिक्स क्रॉपिंग करना है, ऐसी अलग अलग जो क्रॉपिंग सिस्टम है इसका इम्प्लीमेंट होता है। एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग insect, pest and weed control occurs, and also better nutrients are provided to the plants. तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर इंसेक्ट, पेस्ट और वीड इसे कंट्रोल भी किया जाता है, और साथ में बेटर न्यूट्रिएंट्स किस तरह से प्लांट को प्रोवाइड हो इस स्ट्रेटेजी पर काम किया जाता है। तो ऐसा फार्मिंग जिसका रिसेंट टाइम में बहुत बड़ा क्रेज चल रहा है, बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है, और इसकी वजह से जो फार्मिंग है इसमें बहुत सारे इम्प्रूवमेंट आ रहे हैं। तो इस फार्मिंग को ऑर्गेनिक फार्मिंग कहा जाता है। तो आज के वीडियो में यहाँ तक हमने 5 और 6 वीडियोस को लेकर आपके सामने आर्टिकल रखा था 15.1.2 न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, जिसमें हमने न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात की, मैन्योर्स के बारे में बात की, फर्टिलाइजर्स के बारे में बात की, और आखिर में हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग का कॉन्सेप्ट भी आपको बताया। इस वीडियो में यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपने इस वीडियो को देखा, सुना और समझा होगा, और अच्छी तरह सारे पॉइंट नोट डाउन कर लिए होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नोट डाउन कर लिए होंगे, जैसे कि यहाँ पर मेन्यू शॉर्ट नोट था, फर्टिलाइजर शॉर्ट नोट था, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस था, ऑर्गेनिक फार्मिंग का शॉर्ट नोट था। ये सारे आपने अपने नोट में नोट डाउन कर लिए होंगे। इस उम्मीद के साथ धन्यवाद करते हुए थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।